Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum doctors. Myself Muhammad Azim Hussain working as product manager in Janix Pharmaceutical. Dear doctors, welcome in webinar session on behalf of Janix Pharmaceutical Management. Janix Pharma was founded in the year 2004. We have vision to help and provide top quality and affordable medicine for all those in need. Janix is being one of the fastest growing company in Pakistan pharmaceutical arena. We remain committed to improving the life of people associated with us to all level because we are dedicated to good health. Today, our session is a part of educational activity and presentation topic is Alzheimer's management, presented by well-known legendary consultant neurologist Professor Dr. Abdul Malik. Professor Dr. Abdul Malik is MBBS, MD Neurology, Masters of Headache Disorder, University of Copenhagen, Denmark, DCN in Neurology, and Professor of Neurology and Consultant Neurologist, Registrar, Liaquat College of Medicine and Dentistry, Karachi, Vice President of Pakistan Stroke Society, Treasurer, Pakistan Society of Neurology, General Secretary, Neurology Awareness and Research Foundation, Associate Editor, as well as Pakistan Journal of Neurological Science, Chairman, Advisory Committee, Jahan Asab magazine, and he's also Director, Medical Services, Neuro Clinic and Falji Care. He has 80 plus publication, abstracts, oral presentation, reports in which 25 original articles published in international and national recognized journal. He is professionally very busy person, but always available for education. Thank you so much for joining us. Dear doctors, if there is any question, please drop your question in question answer box. Question answer session will be after presentation. Over to you, sir. Thank you so much, sir, for your time. बहुत शुक्रिया भाई. Thank you very much, Asim, for this kind and nice introduction. And I also thankful all the participants who are right now part of this talk. This is not a one-way right communication or one-way talk. If there is any query or any point, we can discuss, so that at the end of the session, we able to know basics of the dementia or Alzheimer disease and what are the treatment modalities. So I just start. What is dementia and Alzheimer disease? Actually, dementia is an umbrella disease. ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको आप यानी elaborate कर सकें किसी एक पिन पॉइंट से. It's an umbrella disease, and one of the commonest form or one of the most neurodegenerative form is the Alzheimer. This is part of dementia. यानी यादाश्त का खराब होना या नसियान होना, भूल जाना, ये dementia है, और Alzheimer उसकी एक किस्म है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे यहाँ कॉमन है वो है यादाश्त की खराबी. या अच्छा, ये सिर्फ ढलती उम्र का नाम नहीं है, ये सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि हम ये कहें कि भाई चूंकि ये उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तो यादाश्त का मसला. ये और बेसिकली जो मेमोरी का पार्ट है, जो मेमोरी समझ स्टोर करता ब्रेन के अंदर, उसके अंदर बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीजें हम जैसे हम वी ऑल नो दैट ब्रेन हैज अ डिफरेंट फंक्शन. लाइक फ्रंटल लोब डिफरेंट पार्ट करता है, प्राइटल लोब जो है वो डिफरेंट करता है, टेम्पोरल लोब भी एक डिफरेंट ऑक्सीपिटल. तो ये कुछ चीजें जिसे कहते हैं ना कि हम एसेस करना होता है. तो बेसिकली यादाश्त के मामले को या किसी की यादाश्त की खराबी के मामले को जांचने के लिए आप में मोस्टली जो क्लिनिक फिजिशियंस हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, तो उनको मिनी मेंटल स्कोर एग्जामिनेशन करना होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शन जो मैंने बात की ना, फ्रंटल, टेम्पोरल, प्राइटल एंड ऑक्सीपिटल, इन लोब्स के फंक्शंस के बारे में बात करनी होती है, और इसके नतीजे में जो इम्पेयरमेंट होती है वो होती है. अब डिमेंशिया जो है ये बेसिकली सिर्फ एजिंग का, यानी इसको हम ये नहीं कहेंगे कि नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है या इसके नतीजे में चूंकि सेल, बेसिकली इट इज न्यूरोडिजेनरेटिव पार्ट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम के बारे में जांचना है. जैसे मैंने आपसे गुजारिश की
के जो ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिसमें फ्रंटल का पार्ट है, इसमें पैराइटल का पार्ट है, टेम्पोरल, ये फंक्शंस बीइंग अ डॉक्टर हमें पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर फ्रंटल का ब्रेन का हिस्सा है, वो आम तौर पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं, या पैराइटल है, वो भी एग्जीक्यूटिव हम कैलकुलेशन के जो फंक्शंस होते हैं, टेम्पोरल बिहेवियरल चेंजेस के हवाले से जो होते हैं, और ऑक्सीपिटल जो कि एक तरह से विजुअल के हवाले से होते हैं। तो ये सब फंक्शंस कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर डिमेंशिया और फिर अल्जाइमर की अगर बात करें तो उसमें डिटेरियोरेट हो रहे होते हैं। उसके नतीजे में डिफरेंट साइन एंड सिम्टम होते हैं। अब अर्ली साइन एंड सिम्टम जैसे है तो उसके अंदर आप समझ लें कि नाम को याद नहीं रखता मरीज, कभी रिसेंट जो कहते हैं कोई वाकयात होते हैं तो वो भूल जाता है। अब आम तौर पे क्लिनिक पे तो बिजी प्रैक्टिस होती है, बाज लोग जीपी फैमिली प्रैक्टिशनर में बहुत ज्यादा मरीज देख रहे होते हैं। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि वो कौन से कॉमन सवाल कर लिए जाए जिससे कम से कम अर्ली स्क्रीनिंग तो हो जाए। वो क्या है, हम आम तौर पे एक शॉर्ट टर्म असेसमेंट कर लेते हैं। अगर मेमोरी यानी मिनी मेंटल स्कोर एग्जामिनेशन करेंगे तो थोड़ा 15-20 मिनट ले लेगा, लेकिन फौरी तौर पर हम उसकी एक जजमेंट लिखने के लिए हम कहते हैं मरीज से कि आपके सामने 3 चीजों का नाम ले रहा हूं या ले रही हूं, कि एक किताब, हरा जंगल, नीला आसमान। तो आम तौर पे वो इस सीक्वेंस में मरीज भूल जाता है, 3 में से 2 नाम लेगा, 2 में या 3 में से 1 नाम लेगा। तो कहने का मकसद ये कि अर्ली सिम्टम में रिमेम्बरिंग चीजें या रिकॉल करने में उसको प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा लेटर सिम्टम में जैसे ये लिखा है कि इम्पेयरमेंट, जजमेंट उसकी खराब हो जाती है, डिसओरिएंटेड लाइफ, कंफ्यूज हो जाता है, बिहेवियर चेंजेस। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ उसको मल्टीपल इश्यूज रूनुमा होते हैं, जिसके नतीजे में उसकी जो डिमेंटिक जो कंडीशन है वो प्रोग्रेसिवली इनहेंस करती जाती है। तो इसलिए जो प्रोग्रेशन ऑफ द सिम्टम्स अल्जाइमर में अगर हम बात करें तो बेसिकली उसके बिल्कुल माइल्ड होते हैं, मॉडरेट और सिवियर होते हैं। अच्छा, माइल्ड के मौके पर ही अगर कुछ चीजें मैनेज कर ली जाए ना तो मॉडरेट तक पहुंचने में डिले कर सकते हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। लिहाजा इस बात की अहमियत को जानिए कि हमें पेशेंट्स की ये डिजीज रिकवर, यानी ऐसा तो नहीं होता कि नज़ला जुकाम खांसी की तरह अगर आपने कोई दवा दी और फौरन रिवर्ट बैक हो। हम इस प्रोग्रेस को, इस न्यूरो डिजेनरेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। वो चीज हम कम कर सकते हैं जिसके नतीजे में उसके रोजमर्रा मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि याददाश्त बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाए। ये तो नहीं हो सकता कि उसके जो वक्त और प्लेस की जो भूल गया वो वापस हो जाए। लेकिन वो प्रोग्रेशन, वो चीज कम से कम जो उसकी प्रोग्रेस है, जो उसकी रफ्तार है, उसकी कमी लाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो माइल्ड सिम्टम है उसमें जैसे बयान यहाँ पे स्लाइड्स में भी है कि उसका शॉर्ट टर्म यानी कि मेमोरी, यादाश्त की करीब तरीन याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी एक होता है ना जिसे हम कंप्यूटर में कहते हैं एक हार्ड डिस्क है और एक सॉफ्ट है। तो बेसिकली उसकी जो कंप्यूटर के अंदर के मामला है वो तो शायद पुरानी चीजें तो शायद ज्यादा हो उसकी, लेकिन करीब की चीजें उसकी याददाश्त में नहीं रहती। तो इसके अलावा बोल लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है कि नेमिंग नहीं लिख कर पा रहा होता, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो ये नो डाउट इट्स अ प्योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस कर रही होती है तो वैसे वैसे इस बीमारी में मुख्तलिफ बीमारियों के अलामात लाइक साइकेट्रिक इलनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और अदर मल्टीपल इश्यूज रोनमा होने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इसमें फैमिली फिजिशियन का बड़ा अहम तरीन रोल है कि आपके पास जब भी कोई मरीज आए तो उसके लाजमी तौर पर उस मरीज के अर्ली साइन एंड सिम्टम को लाजमी जज कर लें, शॉर्ट टर्म एवल्यूशन स्क्रीनिंग कर लें कि इसको मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसकी बुनियाद पर उसकी जो ट्रीटेबल कॉज है उसकी इन्वेस्टिगेशन लाजमी करा ली जाए। और मॉडरेट के अंदर जिस तरह यहाँ मेंशन है कि बिहेवियर प्रॉब्लम होगा, नई चीजें उसको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, और लॉन्ग टर्म उसकी मेमोरी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और वेंडरिंग, एजिटेशन और एग्रेशन, एक शक की मिजाजी और एक अजीब व गरीब उसकी पर्सनैलिटी, यानी वो बुजुर्ग या वो फर्द
जिसकी एक घर के अंदर 50-60 साल की उम्र में एक जबरदस्त जिंदगी गुजरी है, उसने पूरा निजाम जिंदगी घर के चलाया है, पूरे सिस्टम को, वो एकदम ऐसी चीजें करने शुरू हो जाएगा कि अहले खाना को तो पहले तो यकीन नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर यकीन आएगा तो इतना देर से यकीन आएगा कि जो चीज किसी हद तक कंट्रोलेबल की जा सकती है वो नहीं हो पाएगी। लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द साइन एंड सिम्टम। और सिवियरिटी के अंदर तो पीछे के दोनों मामला के साथ और चीजें उसकी, जिसे कहते हैं ना, मोटर फंक्शंस भी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, जिसे आप कहते हैं एक्टिविटी ऑफ द डेली लाइफ, एडीएल। एडीएल कहते हैं एक्टिविटी ऑफ द रोजमर्रा जिंदगी मुकम्मल, यानी वो बेड रिडन हो जाएगा। और उसके नतीजे में उसकी बाकी चीजें जो होंगी, पेशाब पखाना मुतासर हो जाएगा, पूरा उसके रवैयाजात उसके चेंज हो जाएंगे। तो these are the important symptoms which we need to know while the disease progression, specifically in context to the Alzheimer disease. So what these symptoms means to a person with Alzheimer? अब देखें, मरीज himself उसको तो नहीं पता कि वो मरीज है, ये सबसे बड़ा मसला है। क्यों? वो तो अपने हिसाब से ही चीजों को समझ रहा होता है और अपने हिसाब से ही उसकी जजमेंट चल रही होती है। लिहाजा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू नो कि मरीज जो है वो, चूंकि उसे समझ लें एपैथी हो चुकी होती है और उसको बिल्कुल अपनी जजमेंट का भी अंदाजा नहीं होता, तो वो फिर गुजरते दिन के साथ साथ मॉडरेट वो डिपेंडेंस होते चला जाता है। अब ऐसे मौके पर ये एक ऐसी बीमारी है, देखें बीमारियां तो और भी बहुत सारी, शुगर की मरीज है, शुगर बहुत ज्यादा, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं। ये बीमारी ऐसी है जिसके अंदर जितना मरीज को जानने की जरूरत है, जितना उसके नॉलेज को जानने की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा केयर गिवर के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मरीज की जो स्टेजेस हैं वो पता हो और उसकी बुनियाद पर मरीज के साथ उस तरह का थेरेप्यूटिक भी और रिहेबिलिटेटिव भी मैनेजमेंट जारी हो। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अकेले मरीज मुतासर नहीं होता, बल्कि मरीज के साथ उसके करीब तरीन अहल खाना सबके साथ मुतासर होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिहाजा इस बात को जानिए कि whenever we treat a patient, whenever we deal a patient who had a memory impairment, we should not only manage, we not only treat, not only control the sign and symptom of the patient, but also डिटेल्ड काउंसलिंग पेशेंट अटेंडेंट की और उसकी फैमिली की करनी चाहिए। उसके बगैर प्रॉब्लम बहुत होगा, ये मैं आपको बता दूं। और ये एक ऐसा मामला है जो कि 24 घंटे तक उसके प्रॉब्लम रहता है। लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू नो दैट Alzheimer patient is not only affected, it's a whole family. अच्छा, अब आ जाएं ट्रीटमेंट पर। देखिए, ट्रीटमेंट की डिटेल जाने से पहले और इस बताने, 3 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक होता है जर्नल मेजर्स, एक होता है स्पेसिफिक मेजर और एक होता है रिहेबिलिटेटिव मेजर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के फॉर द अल्जाइमर पेशेंट we need to know what are the general measures which we need to keep in our mind in a busy family practice, so that स्पेसिफिक में देखिए, सिर्फ दवा लिख देने से उसका मरीज का मामला हल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। लिहाजा सबसे पहले तो जनरल मेजर्स में उसकी हाइजीन है, उसकी क्या कहते हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी डिस्कशन है, फैमिली के केयर गिवर्स की तमाम चीजों के बारे में मैनेजमेंट है, इस सारी चीजों को डिस्कस करना है। स्पेसिफिक मेजरमेंट वो ट्रीटमेंट आ जाता है। अब अगेन माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, इसके लिहाज से ट्रीटमेंट होगा। जब माइल्ड सिम्टम्स होंगे, जब माइल्ड चीजें होंगी, तो उस मौके पर हमें ये कौन सी दवा देनी है, और मॉडरेट पे जब मामला चले जाएगा तो कौन सी चीज ऐड कर देनी है, और सीवियर में क्या चीज देनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास ट्रीटमेंट पाकिस्तान में कमोबेश सभी हैं, यानी कोलिनेस्टेरॉल इनहिबिटर भी है हमारे पास, जो दीगर दवाएं हैं वो भी अवेलेबल हैं जो कि मॉडरेट टू सीवियर में देते हैं।
तो कोलिनस्टेरेट इनहिबिटर में रिविस्टिगमीन है, डोनिजिपिल है और गैलेंटामाइन है और टेग्रीन है। और ये इत्तेफाक से रिविस्टिगमीन की भी हमारे पे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और डोनिजिपिल में भी है और गैलेंटामाइन में भी है। ये माइल्ड कंडीशन से मॉडरेट तक में these are more recommended, these are more recommended for the patient। और मेमेंटीन अमूमन सिवियर के अंदर विन कॉम्बिनेशन विद दी कोलिनस्टेरेट इनहिबिटर या मॉडरेट टू सिवियर में हम दे सकते हैं। तो लिहाजा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, और देखें पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया भी होता है और पार्किंसंस के अंदर भी डिमेंशिया और लीडिंग टुवर्ड्स दी याददाश्त के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो रिविस्टिगमीन जो है वो ऐसी कोलिनस्टेरेट इनहिबिटर है जो पार्किंसन डिजीज डिमेंशिया में रिकमेंडेड है और इस जो मेमेंटीन है उसकी बहुत ज्यादा यानी रिकमेंडेशन नहीं है। एंड दिस इज यानी अभी लिटरेचर में हम अगर एक जुमले में बात करें तो रिविस्टिगमीन की अच्छी खासी रिकमेंडेशन मिलती है और अवेलेबल ट्रीटमेंट के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इसकी रिकमेंडेशन है कि इसकी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है इन टर्म ऑफ मोटर परफॉर्मेंस विद, और इसके अलावा डिमेंशिया के हवाले से और फंक्शनल और कॉग्निटिव स्किल्स में रिविस्टिगमीन की। अब हमारे पास जो अवेलेबल है दुनिया भर में वो तो जनाब अली 1.5 में भी है, 3 भी है, इसके अलावा ये ओरल सोल्यूशन भी है और पैचेस भी दुनिया में अवेलेबल है। यहाँ पे भी थे लेकिन अभी पैचेस उस तरह से नहीं है। कैप्सूल फॉर्म में ये अवेलेबल है 1.5 मिलीग्राम बीडी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको आगे ट्रिगर करते हैं, ऐड करते हैं टुवर्ड्स 3 मिलीग्राम, कीपिंग इन व्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द साइड इफेक्ट 2 मिलीग्राम ओल्ड, क्योंकि ये ओल्ड पेशेंट्स को लेने में बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करने में कैप्सूल थोड़ा मुश्किल होता है, तो सॉल्यूशन फॉर्म में भी है। और माइल्ड टू मॉडरेट सिवियर डिमेंशिया एसोसिएटेड with Alzheimer में it is highly recommended, and also Alzheimer disease और dementia in the Parkinson। अच्छा, ये तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसकी डोजेज को किस तरह टाइट्रेट करते हैं और इट में इंक्रीज आफ्टर मिनिमम 2 to 3 weeks up to 3 milligram twice daily और subsequently 4.5 milligram twice daily, and we can even go to the 6 milligram as per the need of the patient। इसके क्या, एक तो ये है कि अंडरडोजिंग एंड पुअर ट्रीटमेंट कंप्लाइज आर द की इश्यूज, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिजीज ऑप्टिमाइजिंग किससे शुरू करना है और इसके मॉनिटरिंग और कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल ये बात मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में भी की है, मैं दोबारा ये गुज़ार कर रहा हूँ कि ये क्योरेबल डिजीज नहीं है, ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज प्रोग्रेस करेगा और इसके और साइन सिम्टम्स भी एड ऑन होते जाएंगे। तो समरी के तौर पे कोलिनस्टेरेट इनहिबिटर फॉर अल्जाइमर डिजीज जो है ये एफिशिएंट माइल्ड टू मॉडरेट में एटलीस्ट फॉर 6 months with significant benefit seen in activities of daily life, behavior changes, cognitive dysfunction functioning में, and higher dose generally associated with greater efficacy। Adverse event associated with oral cholesterol typically cholinergic in nausea, vomiting, diarrhea, these are the common cholinergic inhibitor के side effects हैं। तो इन समरी फॉर द रिविस्टिगमीन इन द पार्किंसन डिजीज अगर उसको है तो उसके अंदर रिविस्टिगमीन तो ओनली इंप्रूव्ड है और ये सिग्निफिकेंट इसके रिजल्ट्स हैं। आई आल्सो पर्सनली हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ रिविस्टिगमीन विद द पेशेंट हु हैव पार्किंसन डिजीज एंड हैविंग डिमेंशिया प्रॉब्लम। इट primarily improves in a significant effect of the cognitive functioning and activities of the daily living। और इसके अलावा उस जो साइकेट्रिक अपना पार्किंसन पेशेंट में जो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर भी ये किसी न किसी और खास तौर पे अटेंशन और डेफिसिट फंक्शंस के हवाले से इट्स अ वेरी इफेक्टिव है। एडवर्स में यूजुअली may respond to vomiting 1 or more doses. If they persist, the daily dose should be reduced, number 1। Non-hypertensive to rivistigmine, other compound derivatives or other ingredients। इस पे ज्यादा रहने दें, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में ये डोजेज में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉक। क्वेश्चन से ज्यादा चीजें और खुलेंगी। Thank you so much for your time, sir. What a wonderful presentation and message delivery, sir. We have 4 questions in chat box. Number 1 question is, sir, please share duration of treatment. It's a lifelong. Lifelong.
What is more benefit in comparison with memantine and rivastigmine? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको, ये बहुत सवाल भी इंपॉर्टेंट है, यानी इस सवाल की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल के जवाब को समझना और इस पे अमल करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि हम माजरत के साथ बहुत सारी दवाएं एट ए टाइम शुरू कर देते हैं, जो कि जिसे कहते हैं ना कि कोई बहुत अच्छा असर और बहुत अच्छी कोई चीज नहीं लाता। तो सबसे पहले जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई कौन सी डिजीज के स्टेज पर हम मरीज को डील कर रहे हैं। आइदर इट इज अ माइल्ड साइन एंड सिम्टम, आइदर इट इज अ मॉडरेट साइन एंड सिम्टम्स, आइदर इट इज अ सिवियर या सिवियरिटी में है और बहुत ज्यादा डिजीज प्रोग्रेस कर गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाइल इवन डायग्नोज पेशेंट और या फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा हो, तो ये जजमेंट कर लेने में बहुत ज्यादा आपको समझ लें कि जरूरी है कि आपको पता हो कि भाई स्टेज कौन सी है। ये नहीं पता होगी ट्रीटमेंट गलत होगा, ये नहीं पता होगा उसके नतीजे में आप क्या कहते हैं गैर जरूरी दवा शुरू कर देंगे, ये नहीं पता होगा तो कौन सी दवा शुरू करनी है। तो ये देखिए हमारे पास तो देखिए ट्रीटमेंट एफडीए अप्रूव्ड तीनों तकरीबन, डोनासिबिल भी अवेलेबल है, रिविस्टिगमिन भी अवेलेबल है, गैलेंटामाइन भी अवेलेबल है, मेमेंटीन भी अवेलेबल है। लेकिन अब ये पता होना चाहिए कि भाई डोनासिबिल वर्सेस गैलेंटामाइन वो क्या इफेक्ट डालता है, और डोनासिबिल वर्सेस रिविस्टिगमिन वो क्या इफेक्ट डालता है। देखें एक बहुत ही लार्ज स्केल का एक ट्रायल हुआ था जिसके अंदर डोनासिबिल जो 10 मिलीग्राम 2 साल तक दिया गया, with rivastigmine up to 12 milligram per day for 2 years दिया गया, and focus on patient with moderately severe dementia for more than 2 years। तो जो उसके रिजल्ट थे वो यानी उसने यानी ओवरऑल उस पे फंक्शंस को बहुत ही बेहतर किया, यानी उसने उसकी यानी ये कंपैरिजन में। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो एडवर्स इवेंट जो हुए थे रिविस्टिगमिन के, वो उसके थोड़े बहुत ये यानी नौजिया और इसके टाइट्रेशन मेंटेनेंस में थोड़े ज्यादा हो गए। तो इन जनरल पेशेंट रिसीविंग रिविस्टिगमिन रिपोर्टेड मोर एडवर्स इवेंट देन दोज रिसीविंग आमतौर पर डोनासिबिल, बट नो डिफरेंस इन सीरियस इवेंट वर ऑब्जर्व। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगल देना है, मिला के देना है, क्या देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज कि कब कौन सी चीज यानी हमें देना है, यानी ये नहीं है कि वेस्कुलर डिमेंशिया है तो क्या करेंगे, अल्जाइमर है तो उसके अंदर हमें साथ में कोमॉर्बिड मिसाल के तौर पे विटामिन डी या बी12 की डेफिशिएंसी है तो क्या करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ड्रग कॉम्बिनेशन। रिविस्टिगमिन अकेले देनी है, रिविस्टिगमिन को डोनासिबिल के साथ मिला के देना है, या रिविस्टिगमिन को गैलेंटामाइन के साथ मिला के देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन रिविस्टिगमिन इज अ हाईली रिकमेंडेड फॉर द स्टार्ट ऑफ द ड्रग और स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट व्हाइल हैविंग mild to moderate। Thank you so much, sir. We have another question. What is the maximum dose of rivastigmine in Alzheimer dementia? देखिए मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि देखें 1.5 मिलीग्राम बीडी से तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी इनिशियल डोज जो है इज 1.5 मिलीग्राम बीआईडी which can be increased to 3 milligram BID, then 4.5 milligram to BID, then 6 milligram BID with a minimum of 2 weeks intervening period होगा, ठीक है। Yes, sir. Is it और safe? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना सवाल, वो साइड इफेक्ट का प्रोफाइल को मैनेज करें, यानी हर 2 हफ्ते के बाद जब टाइट्रेट कर रहे हो पेशेंट को, उसकी डोज को ऑप्टिमम ऊपर ले जा रहे हो, तो हमें उसकी लाजमी तौर पर साइड इफेक्ट प्रोफाइल को मैनेज करना होगा, जिसमें नौजिया है, वोमिटिंग है, इवन जो वेट लॉस के बाज़ औक़ात होता है। तो वी नीड टू मॉनिटर द पेशेंट। Sir, another question is it safe with antipsychotic medicine? देखें
देखें अगर एक्स्ट्रा पैरामीटर दीगर चीजें हैं तो जाहिर सी बात है का देखें बिहेवियरल चेंजेस में आप दवा तो देते हैं पेशेंट को रिविस्टिगमिन के साथ या कोई भी अल्जाइमर डिजीज में, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना साइड इफेक्ट प्रोफाइल, उसकी कंडीशन, उसकी तमाम चीजों को। अब फर्ज कर पार्किंसन पेशेंट है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं जो साइकेट्रिक इलनेस होते हैं, इवन अल्जाइमर में बहुत सारे साइकेट, तो कीपिंग इन व्यू जो क्लिनिकल आपको मैनेज करना होता है सर। Sir, last question is that have you any experience with cognitive decline in a stroke patient? Yes, Cognitive decline in a Yes. stroke patient. और cognitive decline होता है, post stroke dementia is a very common form. So stroke में सर ये काम करेगी? बिल्कुल, पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया बहुत, जिस तरह आपने यानी हमने अभी डिस्कस किया ना कि पार्किंसन डिजीज में डिमेंशिया होता है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, इसी तरह पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया होता है। Sir, I am Ijaz from Bawalpur. Sleep disturbance. What about sleep disturbance, sir? Yes, this is very very important. देखें ये जो अल्जाइमर के मरीज होते हैं ना, शुरू में तो इनको इतना ज्यादा इनका स्लीप साइकिल नहीं होता, लेकिन ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम इनकी वेंटरिंग बहुत शुरू हो जाती है। ये डे टाइम में और खास तौर पर जब सूरज ढल रहा होता है ना, तो इनमें एक अजीबो गरीब एंजाइटी और वेंटरिंग टाइप होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको आइसोलेशन में ना डाला जाए, इनको डे टाइम स्लीप पे ना बहुत ज्यादा डाला जाए कि ये हर वक्त बिस्तर पे पड़े रहें, ताकि इनका स्लीप साइकिल जो है रात के वक्त बहुत बेहतर होना चाहिए। दिन के वक्त जो continuously on the bed or totally physically immobile, this will totally harm the patient and even disturb the sleep cycle as well. Thank you so much, sir, for your time. And sir, I want to run the 1 minute video if you allow. ठीक है, करें बिल्कुल। First time in Pakistan Alzheimer's Management Oral Solution. Rivastigmine provides benefits in cognitive performance and activity of daily living in mild to moderately and severe stage of Alzheimer's. Rivim is only colonist stress inhibitor approved for Parkinson's dementia. Significantly and markedly improved power of attention, continuity of attention, cognitive reaction time variability. 0.75 ml contain 1.5 milligrams rivastigmine. The cost of par dose is 8.5 rupees. Treatment should always be started at a dose of 1.5 milligrams twice daily. Thank you so much, sir, for your time and participant as well, sir. What a wonderful presentation, and participants are actively asked the questions about your presentation, and bundle of thanks for your, sir, valuable time. Thank you so much. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you so much, sir.